بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم صل على محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساوبيه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صلی علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 83 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں پروردگار عالم مؤمنین اور اپنے موحدین بندوں کی علامات بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے موحد مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب یہ سنتے ہیں اسے جو رسول پر نازل کیا گیا، یہ الرسول پر نازل شدہ کو سماعت کرتے ہیں. مومن ہوتا ہی وہی ہے جو وحی کو سماعت کرے. یہ مومن وہی پر تو خوش ہوتا ہے کہ خدا کے نازل شدہ کو سماعت کرے. اس سے بالاتر اور بہتر کون سی سماعت ہو سکتی ہے؟ اور مومن کو چاہیے بھی یہی کہ اس کے علاوہ کوئی چیز سماعت ہی نہ کرے، اور سماعت ہی اسے کرے جسے مالک نازل فرماتے ہیں. وہ سنتے ہیں اسے جو رسول پر نازل کیا گیا، اور سننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ترا اعینہم تفیض من الدمع. میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو فیض بن کے جاری ہیں. یہ سماعت وحی کا نتیجہ ہے. بس جو وحی کو سماعت کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آنسو بہاتا ہے. اب میں ان آنسو کو کون سا نام دوں؟ مجھے دیکھو سارے ان آنسو کو کون سا نام دیا جائے؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق، اللہ کے اس فرمان کے مطابق جو سماعت کرتے ہیں کس کو؟ آیات الہیہ کو یا رسول پر نازل شدہ کو، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑتے ہیں. ذرا ان آنسو کو نام دیجئے گا اپنے اپنے قلب میں، اپنے اپنے ذہن میں. اور قرآن سے ہی ہم استفادہ کر رہے ہیں نا. مومن ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن سے بات کو لیتا ہے. تو آؤ مل کر دیکھیں اس کے لیے کون سا نام ہونا چاہیے جو رسول پر نازل شدہ کو سن کر آنسو بہاتے ہیں. اللہ تو یہی فرما رہے ہیں مما عرفوا من الحق. یہ روتے اس لیے ہیں کہ معرفت حق پیدا کر لی. اگر کائنات میں آنسو ڈھونڈنے ہیں جو حق پر آنسو بہے تو وہ یہی ہوتے ہیں. میں نے نام رکھا ہے ان کا اشک حق. قرآن نے اس آیت میں اشک حق کی تعریف کی ہے. حق والے آنسو کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن سے میں اپنے عظیم سامعین کو ہدیے دے رہا ہوں. دیکھو تو صحیح، قرآن سے ثابت ہے کہ یہ آنسو بھی حق ہوتے ہیں. شرط ان کی یہ ہے کہ یہ آنسو حق تب ہوگا جب بہے اس وقت کہ جب رسول پر نازل شدہ کو سنے. کل کی مجلس جن کے اذہان عالیہ میں ہے، جو مرکزی ترین شے میرے رسول پر نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ قرآن نازل ہوا. قرآن کا بھی قطب جو نازل ہوا ہے وہ آیت تبلیغ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو جو تیرے اوپر نازل ہوا ہے اس کی مرکزیت یہ ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت. میں نے سب کو تیرے اوپر نازل کیا، اور جو کچھ میں اللہ نے تجھ حبیب پر نازل کیا آپ نے تبلیغ فرمایا. اور میرے حبیب آپ جو نازل کر رہا ہوں نا، اور اس نازل شدہ کو آپ نے فرمانا ہے تبلیغ. اور تو نے اگر تبلیغ نہ فرمایا، مرکزیت دیکھیں. رات کل میں یعنی گزشتہ مجلس میں اس آیت کے جملے سے جان کر گزر گیا وقت کو دیکھتے ہوئے، اور میں نے ایک روایت آپ کو ہدیہ کر دی جو اس کی تفسیر میں تھی. آج رک کر تھوڑا سا اس کو احساس کروانا چاہتا ہوں. اللہ نے سب کچھ نازل فرما کر، آیت تبلیغ آخری آیت ہے یا نہیں ہے؟
قرآن پڑھنے والوں ماشاءاللہ یہاں فضلا بیٹھے قرآن کے ماہرین توجہ ہے اب صاحبان کی. تو آخری آیت ہوئی نا تمام کے نزدیک, تو تمام کچھ نازل ہونے کے بعد, نازل فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْنِ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, جو کچھ نازل کر چکا ہوں اور آپ جو کچھ تبلیغ کر چکے ہیں وہ فقط تند ہے اس کے ساتھ کہ آپ ولایت علی کو تبلیغ فرمائیں, تو پوری رسالت کو تبلیغ فرمایا ہے. اور اگر ولایت علی کو آپ نے تبلیغ نہیں فرمایا تو کچھ بھی تبلیغ نہیں فرمایا. میں کچھ آج اپنی مجلس میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یہ ساری بات آپ تمام مومنین کو آتی ہے. کون سا مومن ہے یہ ان لم تفعل اس کے قلب وجود پر لکھا ہوا نہ ہو. میں تو نئی بات آپ کو نہیں کرنا, جو نئی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہاں پر کیا ہے, مومن وہ ہے جو سنتے ہیں اسے جو رسول پر نازل کیا گیا. تو یہاں پر بھی تمام کچھ کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس کی بات کرنا چاہتا ہوں جو رسول پر تمام نازل شدہ کا مرکز ہے, جو جس کے لیے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ آیا ہے, جس ولایت کی تبلیغ پر رسالت کی تبلیغ ہے اور جس ولایت کی تبلیغ پر رسالت کی تبلیغ نہیں ہے اس کو سننا ہے. تو پس مومن وہ ہوتا ہے جو ولایت سن کے آنسو بہاتا ہے. اب میرا موضوع واضح ہوا کہ ولایت کا عزاداری سے کیا تعلق ہے. آنسو بالآخر عزاداری کا نتیجہ ہے. تو اب سمجھ آئی عزادار بنتا ہی انسان ولایت کی بنیاد پر. جو قرآن کی آیات سے تفقع کرنے والے ہیں لوگ قرآن سے تفقع کیا ہے نا, اور طلبگی دعویٰ ہے آپ کے لیے شاگردی کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں, اور علمیہ کا ایک ادنا سے شاگرد ہونے کے اعتبار سے یہ تفقع ہوا ان قرآن کی 2 آیتوں کے اقتران سے. اور استدلال یہ ہوا ہے کہ عزاداری تب ہوگی جب وہ ولایت کو مانتا ہوگا. اب مجھے دکھ لگے گا بعد والے جملے پر جو کہنے لگا ہوں, اور جو جتنا ولایت کو مانے گا اتنا بڑا عزادار. یہ مجلس فقط عوام کے لیے نہیں ہے, علماء کے لیے, خواص کے لیے باتیں لوگ قانون دے رہا ہوں اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں وہ اصول اور امہات جن کی بنیاد پر میرے عظیم طلاب اور علماء کرام اس پر جا کر قرآن سے اور استنباطات کر سکتے ہیں. تو بس جو جتنا ولایت میں آگے وہ اتنا عزاداری میں آگے. میں یہیں پر رکنا چاہتا ہوں, انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی عزاداری کا ولایت سے کیا رابطہ ہے, میرا یہی موضوع ہے نا. کہنا یہ چاہتا ہوں عزاداری کی اساس ہے ولایت. عزاداری کی اساس اور بنیاد ہے ولایت. تو جس کو جتنی معرفت ولایت ہوگی اتنا ولایت پر ظلم ہونے سے اس کو دکھ ہوگا. میں اس کو آرام سے کہتا ہوں, یہ جملہ بڑا وزنی تھا, پھر میں اس کو کہتا ہوں. دیکھو جو بندہ جتنا معرفت ولایت رکھتا ہے, میں چلو عام طور پر کہہ دیتا ہوں, جو جس کو جتنا جانتا ہے اگر اس کا احترام اتنا ہو رہا ہے تو یہ کہے گا بھئی یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ عالم ہیں, ایک فاضل شخصیت ہے, ایک ولی اللہ ہے, ایک آیت اللہ ہے, جو بھی آپ نام دے دیں, جو بھی اس کا مقام ہے. اگر اس کا ویسے احترام ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے بھی اس کے مقام کے مطابق احترام ہو رہا ہے. اور اگر انسان ایک بہت بڑا ہے, اور انسان مال سے بڑا نہیں ہوتا, معرفت سے بڑا ہوتا, لوگوں کی واہ سے بڑا نہیں ہوتا, اللہ کی تعریف کرنے سے بڑا ہوتا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, عزت وہ نہیں ہوتی جو لوگ دیتے ہیں, عزت وہ ہوتی ہے جو عزت والی ذات دے. ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, عزت ہے ہی اللہ کی. اگر کسی کے پاس عزت ہے تو وہ عزت الہی ہونی چاہیے. اب کسی کے پاس ہے اس کا عزت الہیہ رکھتا ہے, اللہ کا بندہ ہے, عبداللہ ہے, کیونکہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے نا اس کے پاس اللہ کی عزت ہے, وہ صاحب عزت الہیہ ہے. اب کسی نے آپ کے سامنے
جو عزت والی شخصیت کو آپ جانتے ہیں اس کا احترام نہ کیا تو آپ کو دکھ لگے گا. اور ایک بندہ ہے جو اس عزت والی ذات کو نہیں جانتا، اس کو بھی دکھ لگے گا، لیکن اس کو اتنا دکھ لگے گا کہ شاید اس نے اس ظاہری انسان کا احترام نہیں کیا. لیکن جو جانتا ہے یہ انسان نہیں، مومن ہے، یہ عام مومن نہیں، سلمان ہے. اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی عام مومن ہے، مثلا سلمان ہے، یہ ولی اللہ ہے. اگر اس کا احترام نہیں ہوا تو اس کو اتنا ہی دکھ زیادہ لگے گا، اس کو اتنا ہی احساس ہوگا کہ اس کی بے احترامی زیادہ ہوئی ہے. اب جس کو بھی جتنی ولایت امیر المومنین کی معرفت ہوگی، اب اگر کوئی معرفت امیر المومنین کی ولایت کا احترام کر رہا ہے تو آپ سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ولایت کا احترام کر رہا ہے. اور کسی نے صاحب ولایت پہ ظلم کر دیا، اور نہیں کیا آپ نے، کسی نے صاحب ولایت پر ظلم کر دیا تو جتنی جس کو معرفت ہوگی اتنا ہی اس کو دکھ ہوگا، اور جتنا دکھ ہوگا پھر وہ اتنی عزاداری ہوگی. اب آپ نے بات ہوئی ہے نہیں. اب جس کو پتا ہو کہ یہ ولایت حق اللہ ہے، جو حق کے امیر المومنین ہے، جو حق کے ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اس کو غصب کیا گیا. نقطے پر میں آپ کو لے آیا ہوں، اس کو غصب کیا گیا. اب جو جتنا جانتا ہوگا کہ ولایت کا کیا مقام ہے اس کو اتنا دکھ ہوگا، وہ اتنی عزاداری کرے. اب میں آپ کو ایک بہت بڑا برہان دینے لگا ہوں، جس کو جتنی معرفت ہوگی وہ اتنی عزاداری کرے گا. اور عزاداری ہے کس پر؟ اس پوائنٹ کو لینا ہے. عزاداری ہے ولایت کے حق کو غصب کرنے پر. اور یہ جو باقی مظالم ہیں اس حق کو غصب کرنے کے میں خدا اور اہل بیت پر وہ ظلم کیے گئے جو جسمانی ہیں جن کو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل کون سا ہے کہ وہ حق کے ولایت ان سے غصب کر دیا گیا. اور اسی وجہ سے بڑی توجہ دیجیے گا، اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر احساس ہوگا، اسی میری بات کا کہ جس کو جتنا ولایت کی معرفت ہے اتنا احساس ہوگا. امتحان ہے تمہارا دل میں، اب ہاتھ پہ رکھنا. میری روایت امام صادق کی سننا. امام فرماتے ہیں عید کا دن تھا، بندہ آیا صادق مولا کے پاس، حضرت رو رہے تھے، مرجھائے ہوئے تھے. اس نے عرض کیا مولا عید کا دن ہے، آج وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غدیر کے بعد، پیغمبر کے بعد جب بھی عید آتی ہے ہمارے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے. بڑی توجہ کرنا، کریم بات ہدیہ کرنے لگا. اس نے کہا مولا آپ کے غم میں کیوں اضافہ ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں رأینا حقنا فی ید غیرنا، ہم دیکھتے ہیں ہمارا حق غیروں کے ہاتھ میں. یہ جس کو جتنا احساس اس کا ہوتا ہے نا وہ. اب میں آپ کو وہ جو وعدہ کیا ہے میں وہ برہان دینا چاہتا ہوں، برہان سنیں. تو بس حالانکہ اس پر کبھی میں بولوں گا یا شاید انہی اشرجات میں شبہات کا جواب دیتے ہوئے کبھی بولوں گا. ایک بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ عید والے دن پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور متاسفانہ جو کچھ بھی سننے میں آیا ہے علم سننے میں نہیں آیا، حق سننے میں نہیں آیا. جو مثبت منفی جو بھی باتیں ہوئی ہیں، مجھے اجازت ہے آج میری بات کہیں اور چلی جائے گی اگر میں اس جواب کی طرف چلا جاؤں. ایک کہتے ہوئے میں گزر رہا ہوں، انتظار کیجیے گا، ایک مجلس میں اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ میں بیان کروں گا، پورے اس روایت کو عرض کروں گا، استدلال بھی عرض کروں گا کہ عید والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن اتنا ضرور ہے عید والے دن ظہور سے پہلے غیبت کے زمانے میں جو بھی عید آئے، فطر ہو یا قربان ہو، مومن کو خوشی رچانی نہیں چاہیے. بس یہ جملہ میرا یاد رکھے، خوشیاں رچانا اور بات ہے، عید کے اعمال انجام دینا اور بات. بڑی توجہ کی ہے میری بات کے اوپر آپ نے. ہاں اس کو لے جاؤ، یہ برہان ہے، اصل بات ہے. مومن بھی اسی طرح ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، ہم چھوٹے تھے اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، صبح وقت عید کا ہوتا تھا، بزرگ رو رہے ہوتے تھے،
बाबा आज ईद है, आप क्यों रो रहे हैं? बेटा इसलिए रो रहे हैं कि ये तो बस ईद है, कहा गया है, सुन्नत है, हम अमल कर रहे हैं, लेकिन खुशी की ईद नहीं है। ये बुजुर्ग हमें कहते थे, आप भी अपने बुजुर्गों को सुनते हैं, सब कहते हैं ये खुशी की ईद नहीं है। खुशी उसी वक्त होगी जब साहिबे विलायत इलाहिया ज़हूर फरमा कर विलायत इलाहिया को नाफिज, उस वक्त के हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस जमाने में ये एक, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जितनी जिसको मारिफत है उसके गसब होने पर आजादारी है, और जितनी मारिफत विलायत होगी उतना आजादारी ज्यादा करोगे। ये मारिफत का अंदाज आपने एक दूसरे के साथ, यानी इर्तिबात जो है विलायत का आजादारी से, ये आप तक पहुंच गया है। वो जो बुरहान बार बार कह रहा हूं, अब अर्ज करने लगा, इंतहाई तवज्जो कीजिएगा। जितनी जिसको मारिफत विलायत उतना उसको दुख लगेगा, जिसको जितनी मारिफत विलायत है उसको उतना दर्द होगा। ठीक कह रहा हूं ना? हम जितने भी मुद्दई हूं कि हमें मारिफत विलायत है, खुद साहिब विलायत मेरे वक्त के इमाम से तो बढ़कर कोई मारिफत विलायत नहीं रखता। यानी इन बातों पे आपको बोलना लाजिम है। ये बातें वो है क्योंकि मैं इनको तमहीद बनाकर एक बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ इसको, और ये हकीकी इल्मी बातें हैं और हौजे की बातें हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो करो, ऐसी बात है या नहीं है? यानी कोई भी मेरे मौला जितना आरिफ विलायत तो नहीं है। इसमें आराम से बोलने की कौन सी जरूरत है? इसमें तो इंसान उठकर बोले कि वाकई मेरे मौला से बड़ा आरिफ कौन हो सकता है? जो खुद साहिब विलायत इलाहिया है उससे बड़ा आरिफ कौन हो सकता है? ठीक है, तो गस्ब विलायत पर जितना उनको दर्द होगा तो किसी को नहीं होगा ना। अब दो मिस्ताक बताता हूं। बुरहान एक है, जब मेरे मौला से पूछा गया नहजुल बलागा, मौला अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपकी हालत क्या है, फरमाते हैं बादन नबी, मैं कैसे जिंदा रहा? ऐसे जिंदा रहा, फी हलकी कजा व फिल ऐन शजा, मैं ऐसे सांस लेता रहा जैसे जिस बंदे के गले में हड्डी अटकी हुई हो, आंख में तीर लगा हो। अब आप तसव्वुर करें किसी की आंख में मुसलसल तीर हो, और नहीं फरमाया, यानी 11 हिजरी 28 सफर से लेकर जब तक मेरा अली जिंदा रहा 40 हिजरी तक, ये गिन लो ना, ये 11 हिजरी से 40 हिजरी तक ये 30 साल तकरीबन। अली फरमाते हैं मेरा हर दिन ऐसे गुजरा जिसकी आंख में कांटा हो, गले में हड्डी हो, तो सांस ले सकता है? क्योंकि अली को पता था कि क्या हुआ है। अली जानते थे क्या चीज बसल। ये एक बुरहान और उसका आखिरी बेटा, आखिरी वारिस, जब उसकी बात आती है तो वो कैसे आजादारी करते हैं? इरशाद फरमाते हैं या जद्दा इन्नी बक़ैतु अलैका बदल दुमूए दमन। वक्त के इमाम फरमाते हैं मैं आपके ऊपर पानी के बदले खून रोता हूं। बुरहान कभी है या नहीं है? इससे बड़ा बुरहान मिल सकता है? मेरे मौला से ये क्यों मेरे मौला खून रो रहे हैं? क्योंकि मेरे मौला को पता है कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे मौला जानते हैं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। किसी को नादान को क्या पता कि ये गस्ब विलायत कितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो बस मुझे इजाजत दें, मौजू की बात है। मैं आपको पता है फकत खतीब नहीं हूँ, असल में एक शागिर्द हूँ मकतब अहले बैत का। तो उस शागिर्दी का नतीजा ये होता है कि इल्मी बात को आप तक पहुँचाया जाए और फिर आपके दिल से रिस्पांस, जिसका नाम दुआ होता है, वो मैं लेते ही रहता हूँ। तो ये बात तमहीद के तौर पर मैंने आपको हदिया कर दी है। असल मौजू मेरा कामिल हो गया है, यानी मौजू समझाने में कि मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ आज ये कामिल हो रहा है कि राबिता विलायत का आजादारी से क्या है। विलायत थी अली की, अल्लाह ने अली को ये विलायत अता फरमाई और उसको गसब किया गया। उसको गसब करने में मुसलमानों ने
کوئی اتنے ظلم کیے، کوئی اتنے ظلم کیے کہ آسمان بھی خون رو رہا ہے، زمین بھی خون رو رہی ہے۔ یہ انسان ہے جو رونا نہیں چاہتا۔ اور نہیں فرمایا یہ امتحان ہے انسان کا کہ ملکوت کے ساتھ ملے، اپنے مولا کے ساتھ ملے، کہ جو رونا نہیں چاہتا، ورنہ ہر چیز نے اس پر رویا۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں اس کے اوپر بکت علیہ کل شیء ما یرا و ما لا یرا، جس کو دیکھا جاتا تھا وہ شے بھی حسین پہ روئی ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ بھی روئی ہے۔ ما یرا و ما لا یرا، وہ مرئیات جن کو دیکھا جاتا ہے وہ بھی روئی ہے، وہ لا مرئی اور نا مرئی بھی ان کے اوپر روئی ہے۔ تو بس ولایت کا تذکرہ یہ اصل ولایت ہے۔ اس ولایت کے غصب کرنے میں سبیلی شاہ جی جو ان ظالم مسلمانوں نے ظلم کیے ہیں نا، اصل اس ولایت کو غصب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ کوئی حرج نہیں، پھر آؤ تھوڑا سا ایام ازائی ہے، میں بات کو کامل کر دوں۔ اس ولایت کو غصب کرنے کے لیے انہوں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ کھولا۔ وہ ولایت غصب کرنا مقصود تھا، وہ ولایت غصب کرنا مقصود تھا۔ اس ولایت کو غصب کرنے کے لیے 18 سال کا جو بھی انسان ہو، چاہے مرد ہو یا مستور ہو، اس کا دل چاہتا ہے میں جیوں۔ انہوں نے رسول اللہ کی 18 سالہ بیٹی کے اوپر اتنے ظلم کیے، رسول کے بعد ہر سانس پہ کہتی تھی اجل وفاتی سے، اللہ اب میں بطول جینا نہیں چاہتی، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، تیری گرما گرو نے مجھے جینے کے قابل نہیں رکھا، بابا میرا سانس مشکل سے آتا ہے۔ 18 سال کی جوان مستور رسول کے بعد نہ خود بیٹھ سکتی تھی نہ خود کھڑی یہ وہ ہوا۔ اب سنو اسی آنسو کے ساتھ میں کوئی اور سوچ گیا تھا، قسم بخدا کوئی اور سوچ گیا تھا، موضوع کیونکہ گہرا ہے اس کو پہنچانے کے لیے چلو 1 گھنٹہ ایسے ہی سن لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بطول کی بیٹی کے اوپر یہ اس کو غصب کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا، ولایت کو غصب کرتے کرتے انہوں نے بطول کو مارا۔ عبداللہ اس طرف سے سنے، اور بطول ولایت بچاتی بچاتی زخمی ہو جس کو بچانے کے لیے بی بی مدافع ولایت ہے، بی بی شہیدہ ولایت ہے، بی بی شہیدہ ولایت ہے۔ یہ بچاتی بچاتی بی بی شہید ہو گئی۔ آخر کے بی بی کا حالت کیا تھی؟ فضہ کا بیان ہے، کسی نے پوچھا بی بی کیا حال تھا معظمہ کا، کہتی ہے کیا بتاؤں، کانت کل خیال، 18 سالہ جوان رسول کی بیٹی آخری دنوں میں بس ہڈیاں پانی ہو گئی تھی، ایک سایہ تھا جس سے سانس آتا بھی تھا جاتا بھی۔ کانت کل خیال، علماء فقہا اس کے اوپر ماتم، کانت کل خیال، یہ حالت ہو گئی۔ یہ ولایت بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد علی مولا کے لیے پھر وہ انداز تھا عزاداری، ہر ایک کا زمانہ مختلف ہے۔ علی خون رونا چاہتے تھے، مصلحت یہ تھی کہ اس طرح ہو رہے، بس فرمایا آنکھ میں کانٹا۔ میں بتاؤں آپ کو ایک مصداق بتاتا ہوں، علی کی آنکھ میں کانٹا کیا تھا؟ ماتب ہر بندہ کرے تو جملہ کہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم ہے، میرے علی کی آنکھ میں کانٹا کون سا تھا؟ گھر سے باہر نکلتے تھے بطول کا قاتل، 30 سال علی جو بطول کو مارنے والے تھے، اور جس نے بطول کو مارا تھا وہ علی کو نظر آتا۔
से हुई है। ये अली मौला की आंख में काटा था, अल्लाह पाक की कसम में। और सुनोगे अली के गले में हड्डी कौन सी थी, अली फरमा ही नहीं सकते थे। और लोगों, गदीर में जिसकी विलायत का ऐलान हुआ था, मैं वही अली बरमला नहीं फरमा सकते थे। रसूल के मिंबर पर बैठने वाले बातिल है, रसूल के मिंबर पर बैठने वाला आईने बातिल है, ये आईने वासिफ है। अली उस चुप के साथ रहे जिसके ऊपर मामूर थे। और बारी आई इमाम हसन मुज्तबा की। भाई मैं ऐसे एक तरतीब बताई है, मैं साथ नहीं पढ़ना चाहता, एक जुमला कहकर आप तक बात को पहुंचाना चाहता हूँ। इमाम हसन मुज्तबा ये उसी वक्त से मौजूद थे ना जब से विलायत गसब हुई, और इनका दर्द ज्यादा है। थोड़े बंदों ने मेरा जुमला सुना है, ठीक है ना, ऐसा है। इमाम हसन मुज्तबा भी तो छोटे थे ना, उस वक्त छोटे थे ना, 8 साल के थे ना जब विलायत गसब हुई और मां जख्मी हुई। शाम के दरबार में भाई डॉक्टर साहब जब इमाम हसन मुज्तबा गए ना, मुगीरा नामी एक मलऊन है, इसने मौला के सामने कुछ इशारत की, फिर कहता है आप मुझे जानते हैं, कसम खुदा में कह रहा हूं, खून रोकर हसन मौला कहते हैं अंतल्लज़ी फर्रमत उम्मी, जिसने मेरी अम्मा बंदा तू माँ के कातिल को भूलता है। विलायत इस तरह का सब होती है। अल्लाह पाक की कसम, हुसैन मौला भी इसी तरह, सज्जाद मौला भी इसी तरह। इसी विलायत के गसब होने पर ये सारे शहीद होते गए। 12वें को अल्लाह ने अपने पर्दा गैबत में उठा लिया। अब उसको जो उठाया ना, उसका इम्तिहान सबसे सख्त इसलिए पर्दा पानी के बदले खून जुमला है। वो फरमाते हैं जहां पर भी इमाम ज़मान नमाज पढ़ते हैं, उनके सामने मौला हुसैन का वो खून आलूद करता है। सुनिएगा, कहते हैं तुम करबला सुन के रोते हो, इमाम ज़मान करबला देख के रोने के दिन है ना, तो रो फला को पढ़ता ही रहता हूं। खून रो रहा है। अब अज़ादारी और विलायत का राब्ता समझ में आया है। ये सारी अज़ादारी उस विलायत के कसब होने पर है, और उसके लिए हम कभी मदीना का जुल्म याद करके रोते हैं और कभी हम मुहर्रम का याद करके रोते हैं। अच्छा, आज यार बस इरफानी मसाइब ज़हन में आ रहे हैं, सुन लो। ये वो बातें हैं जो मेरे दिल में थी, मैं खुद सोच कर खलवतों में रोता था इन बातों पर। ये जुमला जो अब कहने लगा हूँ, ये जिंदगी में पहली मर्तबा कह रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात को। अल्लाह पाक की कसम, ज़हन में सवाल आता है कि एक तरफ मतलूब मोहम्मदी तू कहता है मदीने वाले मसाइब सबसे ज्यादा, मैं कहता हूँ ना, और मेरा कहना नहीं है, इमाम सादिक की फरमाइश है। मेरे मौला 3 जमादी सानी को रो रहे थे, मैं बात पूरी करूं, बात पूरी करता हूं। रो रहे थे तो मौला साहबी ने आकर कहा, सादिक मौला आप क्यों रो रहे हैं आज? कहा आज हमारी अम्मा को शहीद। ये मेरी बात का जवाब है। उसने अर्ज किया, मौला आपके ऊपर मजालिम तो करबला में हुए हैं, नहीं आपकी जद के ऊपर करबला में हमसे थोड़ा शहीद हुए। अब 3 जमाती सानी को दादी को समझ कर क्यों रो रहे हैं? इमाम फरमाते हैं करबला बड़ी सख्त है। ऐन जुमला है मौला का, करबला बड़ी सख्त है। वलाकिन्ना
यौम सकीफत अमुर्रु व अदहा अलैह। फरमाते हैं करबला जुल्म हुआ है, लेकिन मदीने में जो जुल्म हुआ है ये दुख हमें ज्यादा देता है, इसकी हमें तकलीफ पड़ी होती है। वो करबला में हमारी माँ है, जितने करबला में मेरे दादा को मारने वाले थे उतने मेरी तनहा अम्मा को। या साहिबा जमान वाला अल्लाह मेरे मौला के बहू में ताजीर फरमा। और ये मैं समझ रहा हूँ आपका ही इज़्न हुआ है कि इस में चला गया, और ये बात अपने अजीम मोमिन तक शामीन तक जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, समाज फरमा रहे होगा इल्म यकुन से ये बात आ रही है, और मैं इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूँ। दिल की बात यही है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, करबला बहुत अजीम है, लेकिन जिन मसाइब पर करबला वाले भी कुर्बान है वो बतूल है। आप समझ में आइए बात। असल हम होते हैं कभी किसको मदीने के मसाइब को, कभी करबला को याद कर। अब वो जो राज की बात थी अब करने लगा, ये मौला ने फरमा दिया ना, दुख तो ज्यादा बीबी के ऊपर होता है, करबला में भी बड़ा जुल्म है। फलसफा दरमियान में हिकमत, आराम से सुनो, आंसू के साथ सुनो, लुत्फ आएगा आपको। हिकमत ये है, माँ के जुल्म बताना गैरत का मसला है। जिस तरह वो लैलतुल कद्र है फजाइल में, वो लैलतुल कद्र है मसाइल। मार्फत वाले तो इस पर पीट सकते हैं, मातम कर सकते हैं, लिहाजा उसके मसाइब भी छुपे रहे। करबला का तज़किरा इसलिए होता है कि वो यौम है, वो दिन है, क्योंकि वो इमाम मर्द है। उसके मसाइब बताए जा सकते हैं, उसके मसाइब महसूस किए जा सकते हैं। यार मेरी बात को लेने के मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। हुसैन मौला के दुख तीर तलवार महसूस शायद किए जा सकते हैं, बतूल का तमाचा एहसास आप समझे? एहसास नहीं हो सकता यार, गैरत वाले बंदे सारे मसलहत इलाहिया ये थी, इरादा अज़लिया इलाहिया ये था कि करबला के मसाइब को महवर बनाया जाए और करबला की आज़ादारी को महवर बनाया जाए। लेकिन जब इसका वारिस आएगा ना, फिर महवर बतूल के मसाइब। अब मैं मुतमईन हुआ हूँ कि बात में दुनिया में कहा गया कि जे इस तरह रह जाए कि हुसैन के मसाइब को बरमला किया जाए, और इसको दुश्मन एहसास कर सकता है। क्यों? दिन दिहाड़े में हुआ, हर शहर का फौजी आया, नहीं गया, उसको तो छुपाया गया था ना, छुपा के हुआ ना। ये हुआ है मैदान में, तो मैदान की बात को किया गया। गदीर भी मैदान में, करबला भी मैदान में, लिहाजा इसकी बात करो जो है ही लैलतुल कद्र, उसको घर में मसला ये है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है मारिफत वालों का, और मेरे दिल का अपना दर्द भी था। आज मैंने हदिया कर दिया, पहली मर्तबा मिंबर पर मैंने कहा है, मेरा अपना जाती अकीदा है, और मैं आज आपको कह रहा हूँ, यानी मसाइब मदीना में ज्यादा है, लेकिन हम जिक्र करबला का इसलिए वो भी जितना हम दर्द कर सकते हैं बता रहे ना। करबला के हकीकी मसाइब तो वो करबला वाला जानता है, वो तो करबला वाला जानता है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो तो हमें पता ही नहीं है। हर मोमिन का जितना दिल है वो उतना मारिफत मसाइब रखता है, और मारिफत मसाइब उतनी उसको होती है जितनी उसकी मारिफत विलायत।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने मौजू को आप तक पहुंचा सका हूं। इस बात को कबूल करने के लिए तवज्जो के साथ सलवात बस आओ। थक तो नहीं गए हो? थके तो नहीं हो? बात पहुंच गई है? नहीं। अगर बात आप तक पहुंच गई है और आप थके नहीं है तो मैं इसको कामिल करता हूं। बस जितनी मारिफत विलायत है उतनी ही मारिफत अज़ादारी होगी, और फिर जितना आरिफ विलायत होगा बंदा मोमिन उतना ही अज़ादारी को उसी अंदाज में अंजाम देता है। जो खून बहाता है तो फिर उसी मारिफत के साथ सलवात पढ़िएगा। इस विलायत को बचाने के लिए पहली शहीदा बतूल, दूसरे शहीद अमीरुल मोमिनीन, तीसरे इमाम हसन, और इसी तरह ये सिलसिला आगे है। यानी असल ये सिलसिला बाकियों के क्या जिक्र करें। जब सैयदुश शुहदा और सादात का जिक्र हो रहा है तो बाकी तो उसके बोलो ज़ायल में आ जाते हैं, बाकी की बात नहीं। मैं असल की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और इसी विलायत को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। इसी विलायत को पहुंचाने के लिए मेरे मौला ने करबला का रास्ता इख्तियार किया। इसी विलायत को पहुंचाने के लिए, अब ये मौजूद तवज्जो कीजिएगा, एक है बचाना, एक है तबलीग करना। आप सुनिएगा, हुसैन मौला ने बयाक वक्त दोनों काम किए। विलायत को बचाया भी है, तबलीग भी फरमाया। मेरे मौला की विलायत को तबलीग करने का अंदाज तो देखें कैसे चले। आज आपको हकीकत सुनाऊं तारीख की, और यहीं से जिस मसाइब के आप मुंतज़िर हैं उसी को शुरू कर दिया है मैंने, और इसी के ऊपर मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मौजू मेरा, मैं आज बड़ा मुतमईन हूँ, शाकिर हूँ। बड़ा 2 दिन से मेरे जहन में था कि मैं इस मौजू की हकीकत को कैसे मुंतकिल करूँगा, कि वरना मसाइब बन जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मसाइब बन गया। आप रो पड़े हैं, बात रोती हुई आंखों में इस 45 मिनट में आप तक लोग पर पहुंच गई है। मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूँ। हुसैन मौला मदीने से चले, कितने साज़ो सामान के साथ और कितने लोगों के साथ। किताब है कमकाम ज़ख़ार। जब बंदे नाचीज़ शरहुल्लुमा पढ़ते थे, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह विजदानी फ़ख्र रहमतुल्लाह अलैह शरहुल्लुमा, हम बंदे नाचीज़ उनसे पढ़ता था तकरीबन 30 साल पहले। उन्होंने इरशाद फरमाया था, फरमाते थे नूरे चिश्मानम, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, नूरे चिश्मानम मक्तल की तारीख में बेहतरीन किताब है कमकाम ज़ख़ार। 2 मुजल्लद हैं, ले लो इसको, फारसी में है, कमकाम ज़ख़ार। उस्ताद ने फरमाया था, हमने उसी वक्त ली। उसी की तहरीर के मुताबिक आपको ये बात सुनाएगा। यानी काफिला हुसैन का 28 रजब को चला 7 हिजरी में। कितने चले? मार्फत वाले रो गए। मैं आपको अर्ज कर, रोने के लिए बैठो, तैयार आपने तिश्ना रहना है रोने के लिए, और चाहे मैं तारीख को पढ़ूं उसके पीछे रोना, उसके पीछे मसाइल है। सुनो, पहली बात कर रहा हूं। वो लिखते हैं कितने नाका थे, कितने ऊंट थे, कितने घोड़े थे। उन्होंने लिखा है 250 ऊंट, नाका और महमल थे, 250 घोड़े थे। लश्कर देखे हुसैन का। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है उनमें से 70 ऊंट फकत खैमे उठाने के लिए थे। मैं इसे लफ्ज़ नहीं समझा सका। 70 ऊंट फकत वो थे जिन्होंने हुसैन के खैमे अपने ऊपर लगे थे। मेरे मौला जहां भी उतरते थे और खैमे लगते थे ना शाहजी, वो खैमे इतने ज्यादा थे कि 70 ऊंट फकत खैमे उठाता था। 70 ऊंट फकत
खैमे उठाने वाले थे, कसम बखुदा उन्होंने लिखा है 40 ऊंट वो थे जिनके ऊपर खाने पकाने के ज़र्फ और बर्तन लगे हुए होते थे। इस जुमले के ऊपर मैं बड़ा रोया हूँ। फरमाते हैं 40 नाका ऊंट वो थे जिन पर हुसैन की हाशमी मर्द व खवातीन के लिबास थे। मैंने जहां पढ़ा है मातम हुआ है बना नहीं अभी समझ में थोड़ा सा इशारा करूं। अब सोचो शाम गरीबा कितनी अब समझ आई है मोमिन, ये सारे लिबास शाम गरीबा लूट लिए गए। कहते हैं बीबियों के बदन मुबारक पर जो लिबास थे वही बाकी रहे। मसाइब सही सुनो तो सोच कर भी बिस्तर पे रो सकते हो, मेरी बातों को सोचना। वो लिख रहे हैं इसके ऊपर इसी तरह 10 ऊंट वो थे जिनके ऊपर दिरहम और दीनार लदे हुए थे। तो सैयदो कहना चाहता हूं, हुसैन इज्जत में लोगों के सामने जुल्म में गरीब था, माल में गरीब नहीं था। और मेरे मौला इस तरह चले हैं ये नाका। उनमें से उन्होंने लिखा है 50 या 53 महमल, लफ्ज महमल है वहां, ये 50 या 53 महमल थे जिनके ऊपर बीबियां सवार। उन्होंने कहा है बाकी 50 महमल वो थे जो मर्दों के सवार होने के लिए था। जो सफर करने वाले हो, जानते हो पुराने सिक्कों की तारीख को जानते हो ना, उस वक्त सारा सफर घोड़े पर भी नहीं होता था ना। इतना बड़ा सफर मदीने से लेकर करबला का है, ये 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा सफर फकत मर्द घोड़े पे नहीं कर सकते, आराम करना होता था कि सवारी चलती रहे और सवार उसके ऊपर थोड़ा आराम भी करता रहे। कभी कभी ये रिवायात में मिलता है इमाम हुसैन भी उठकर कजावा में आ जाते थे। कुछ सफर मेरे मौला नाका पे करते थे, कुछ सफर मेरे मौला घोड़े पे करते थे। ये 250 में से 53 जो थे ये बीबियों के घोड़े महमल थे, और 50 उन्होंने लिखा है ये मर्दों के लिए थे, हाशमी मर्दों के लिए और दीगरान के लिए जो वहां आराम करते थे। अब आओ सोचो जरा, सबने यही कहा है कि जब सज्जाद वापस मदीने आए फकत 3 महमल बचे। सैयदो कितना हमारा नुकसान, मदीने से लेकर करबला, करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम तक ये महमल से शहीद होते। अल्लाह पाक की कसम रो पड़ना यार, इसके ऊपर इससे बड़े दिन नहीं है। आपको मौला दुआएं देंगे। मैदान करबला में हुसैन के मर्द शहीद हुए, करबला से लेकर शाम तक बीबियां शहीद, पूरे सफर में बीबियां शहीद होती रही। कोई ऊंटों से गिरकर शहीद और कोई ताजियानों के नीचे शहीद। 53 महमलों पर मस्तू मुखद्दरात सवार 3 महमल बचे। इन 53 को लेने जाने वाले रोकना, इन 53 को ले जाने वाले अब्बास थे, और 3 को ले आने वाले तन्हा सज्जाद। खून रो के कहता था और अम्मा ज़ैनब और तेरा जूता भी बाला वापसी पे यही महमल लिखे हैं। घोड़े की तारीख मैंने नहीं पढ़ी, किसी ने पढ़ी हो तो बताना। यानी हुसैन मौला के साथ गए हुए घोड़े वापस नहीं आए। अब देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और बात भी सुना लूं, और क्या हुआ जब करबला में पहुंचे हैं। ये 72 तो आप सुनते हैं, आप तवज्जो करो, आज तारीख सुनो। बड़ी कीमती मजलिस आज मैंने हदिया कर दी है आपको। एक ही मजलिस में कई मजलिसों का मैटर था, हदिया कर दिया है। हुआ क्या है, जब ये काफिला हुसैन मौला के डॉक्टर साहब
करबला पहुंचा है 2 मुहर्रम को, तो कितने लोग थे उस वक्त? 72 थे नहीं, कम से कम 120 की तादाद है और ज्यादा से ज्यादा 500 अफराद थे। अब मसाइल है, ये 502 मुहर्रम को हुसैन के साथ थे, शबे आशूर अंधेरे के बाद फकत 72 और मैं मार जाऊं। यही तो कौन है, कुछ मदीने में हुसैन के साथ, कुछ मक्के में साथ, कुछ रास्ते में साथ होते गए, कुछ करबला में पहुंचने के बाद आए, लेकिन करबला में जो दिन गुजरते जाते थे मोरे मौला हुसैन के साथ रहने वाले कम होते चले जाते। हाँ, ये 3 मुहर्रम से थोड़े, ये इसी तरह कम होते गए। 3 मुहर्रम से उधर से शाम वाले मलऊन की फौजें ज्यादा होती गई, हुसैन के साथ आने वाले थोड़े होते गए। इसको एहसास करो। आज आपने बड़ी, मैं अपने एतबार से कह रहा हूँ, कीमती मजलिस आपने समाप्त फरमाई है। बहुत हर मजलिस कीमती होती है, इसमें आपने इल्म का एक समंदर लिया है जो मैंने आपको हदिया कर दिया। हुआ क्या है, ये थोड़े होते गए, उधर से ज्यादा होते गए, इधर से थोड़े होते गए। शाम शब आशूर कुछ ज्यादा थे, जितने थे जब हुसैन ने फरमाया ना, देखा ना कुछ शर्म की वजह से नहीं जा रहे, तो फरमाया पास अब करा, मेरे पास जो रहे वो खालिस रहे, मेरे पास जो रहे वो खुल्लस रहे। तब 72 बचे। ये भी आप तक एक मैंने तारीख की हकीकत को पहुंचा दिया। अब और सुनो हकायत। अब ये काफिला वहां से चला, कल आपने मुझसे सुना बीबियां सवार हुई, तरीका क्या होता था, अंदाज आपने देख लिया, कितने महमल थे, किस अंदाज की ये चीजें थी, ये सारा मैंने सारो सामान आपको बता दिया है। अब चलने का अंदाज ये था, आगे आगे बड़ी तवज्जो करना, आगे आगे हाशमी मर्द होते थे, उनके नौकर और गुलाम आगे आगे, पीछे पीछे फौजियों के और मेरे मौला के साथ आने वाले दीगर मेहमानों के, उनके घोड़े और उनकी सवारी। कसम बखुदा दरमियान में होती थी हाशमी मस्तूरात, फिर इनमें से भी दरमियान में होती थी बीबी ज़ैनब। इस महमिल के इर्द गिर्द किसी तरफ अकबर थे, किसी तरफ अब्बास थे, किसी तरफ कासिम थे, कहीं मोहम्मद थे। इस अंदाज में ये इज्जत वाली बीबी मदीने से करबला पहुंची है। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, मंजिल होती थी, रोना इसके ऊपर हर मंजिल के बाद मौला हुसैन फरमाते थे, अब्बास ऊंट रोको। मंजिल होती है उस वक्त के मुताबिक 3 मील की, या बाद ने कहा है 3 फरसख की। 3 फरसख वाली ज्यादा है, 3 फरसख, हर फरसख होता है 3 मील का, यानी 9 से 10 मील के बाद एक मंजिल होती थी, रुका जाता था। आप समझ आ गई? अब रोने की बात है। हर मंजिल के बाद हुसैन फरमाते थे, अब्बास काफिला रोको, मेरी बहन थक गई। मेरी बहन मुसलसल सफर नहीं कर सकती, मेरी अदादारों, काफिला रुकता था, खैमे लगते थे, रात गुजरती थी, फिर दूसरे दिन कहीं कहीं पर 3 दिन भी हुसैन रुकते थे, कहीं कहीं पर 3 दिन भी हुसैन रुकते थे। अब मौला गाजी का, ये मैंने खुद पढ़ा, मौला गाजी का अंदाज क्या होता था, बीबी ज़ैनब के साथ भी रहते थे और कभी कभी घोड़ा दौड़ा कर आगे चले जाते। कहते हैं कुछ देर ज्यादा बीबी ज़ैनब ने मौला अब्बास को न देखा, रोकर कहती है, हुसैन मेरा गाजी कहाँ? हुसैन मुझे अब्बास नजर नहीं आया। हम मौला रोकर फरमाते हैं, आगे आगे तेरे लिए तेरे पर्दे का बुजुर्ग उलमा पढ़ते थे, ये जुमला हकीकत में मबनी
मैं तय तारीख के लफ्ज न हूँ। हुसैन मौला फरमाते हैं वो भाई तेरा आगे जा जा कर कहता है अल हिजाब लोगो हट जाओ ज़ैनब ये 250 ऊंट, ये 250 घोड़े फकत एक ज़ैनब का पहरेदार। अब मुझे बताओ उस बीवी का क्या हाल होगा जब इसी अब्बास के बाद शिविर में आकर चादर का मुझे कत्ल करने में चादर रोकर फरमाती थी मुझे अब्बास नजर ना आए मेरा दिल दहला। आप रोए बड़ा रोए बिलाकर दो ये चलता हुआ मैं सारे हालात नहीं पढ़ता चलता हुआ ये काफिला 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचा। बस इसी के ऊपर खत्म कर रहा हूँ। दुआएं मांग लो, दामन अपना फैला लो हाजतों का, और सबसे बड़ी हाजत मारिफत मौला और मौला की, बाकी हाजतें इसके पीछे हूँ। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ आज की मजलिस में एक खास नजर करम है, इसको ले ले आप। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ करबला में मेरे मौला पहुंचे, चलता हुआ घोड़ा खुद रुका। जिसके घोड़े में इतना शऊर हो वो हुसैन घोड़ा रुका। मेरे मौला ने फरमाया घोड़ा क्यों रुके हैं? हुसैन के घोड़े ने जमीन की तरफ देखा, हुसैन को इल्म हुआ हुसैन मेरा घोड़ा से उतरे। अब तूने घोड़े से उतरे, करबला की मिट्टी उठाई, हाथ पे रखा, एक मर्तबा चूमा। ये मौला को इल्म हो गया बताने के लिए। ऐसे इधर उधर देख कर कहते हैं यहाँ बनी असद के लोग रहते हैं, उनको किसी को बुलाओ ना। काफिला जो इतना बड़ा था वो भी आ गए, बनी असद के लोगों। कुछ उनके बुजुर्ग आगे हुए, तुम बता सकते हो इस जमीन का क्या नाम है? उन्होंने कहा सही इसका नाम है नैनवा। मौला ने फरमाया अच्छा कोई और नाम इसका? एक बूढ़ा था, कहते हैं दूर से उठा, रोती हुई आवाज में उसने कहा मैंने पढ़ा है किताबुल अतीक में इस जमीन का नाम है करबला। उसका करबला कहना था। हुसैन के आंसू गिर पड़े, रोकर फरमाते हैं अब्बास कहने लगा अब यहीं पर रुकना। अब मेरे मौला का इसको आप समझ लें, खुतबा आप इसको समझ लें, बयान जो भी है वो आपको मैं सुनाता हूँ। मैंने इसी के ऊपर तमाम कर देता हूँ। लोग जमा हो गए, मौला अब्बास भी सारे भी और बनु असद वाले भी। मौला क्यों यहाँ पर कह रहे ये क्या जमीन है? आप भी रोने लग गए। पहला जुमला सुनिएगा। रोकर मेरे मौला फरमाते हैं हा हुना मज़बहु रिजालिना। आपको तो मालूम करने तर्जुमे की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक की कसम मैंने दिक्कत से ये जुमला देखा है। लफ्ज बाज में है मक्तल और रिजालेना, लेकिन मोतबर किताबों में है मज़बह और रिजालेना। हुसैन फरमाते हैं ये वही जमीन है जिस पर मेरे मर्द ज़बह नहीं। थोड़े बंदों में समझा मेरी बात। हुसैन कहना चाहते हैं ये वो जमीन है जहां मेरे अकबर को नेज़ा, जहां मेरा कासिम टुकड़े हो जाएगा। ये वही जमीन है जहां मेरे असगर को तीर लगे। अल्लाह पाक की कसम बनी असद के लोग ने मातम किया। दूसरे जुमले हुसैन पर मोमिन कैसे नहीं करेगा? और रोकर हुसैन कहते हैं वहां हुना महतको हरी मेरा बीबियों की चादर मेरी सकीना को दबा जमीन के ज़ाहिरी मालिक को मौला ने फरमाया मेरे करीब आओ। कानों का रहमो मजलिस को मेरे करीब आओ। जो ज़ाहिरी मालिक था, मिल्कियत का मालिक था, उसको करीब आकर फरमाया 60 मुरब्बा मील का एरिया मैं तुझसे खरीदता हूँ। यार कितना मालदार है हुसैन, कितने खरीदता है? 60 मुरब्बा मील का एरिया मैं आपसे खरीदता हूँ। उसने कहा मौला मैं बेचता हूँ।
आपको हदिया करते हैं। मौला फरमाते हैं ये हदिये का टाइम नहीं है, ये जमीन का जर्रा भी किसी की मिन्नत लगाने के काबिल मैं कीमत दूंगा। उन्होंने कहा मौला जो आप फरमाए, फरमाया नहीं, जो यहाँ की कीमत है वही दूंगा। जो वहां उस दौर की कीमत थी उससे ज्यादा बनते थे 60,000 दिरहम। हुसैन फरमाते हैं अब्बास 60,000 दिरहम उनको दिए। अब मतलब सुनोगे सही, उन्होंने लिया, जाने लगे थे, हुसैन रोने लगे। दो बातें हुसैन ने की है, मैं इसी के ऊपर मिम्बर छोड़ रहा हूँ, अजमत इसी में है, मार्फत वाले रोते रहोगे, मैं मिम्बर छोड़ रहा हूँ इसी के ऊपर। रोते रोने लगे, रोकर उनको कहा बनी असद के लोगों वापस आओ। वो वापस पहली अपनी बात की, ये हुसैन की गुर्बत की बात है, दूसरा तुम शियों की इज्जत की बात है। अपनी गुर्बत की बात यही की है, फरमाते हैं मैं 10 मुहर्रम के बाद यहाँ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं यहाँ शहीद हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर शहीद हो जाऊंगा। तो मैं वसीयत करता हूँ मेरे बेटे को हमें दफनाने कोई नहीं देगा, हमारे दफनाने वाले कोई नहीं होंगे, बनी असद के लोग हमारे लाशें दफना देंगे। मुसलमानों रसूल के बेटे की गुर्बत देखो, फरमाती है हमें दफना देना। अब्बास ने लिखा है एक मर्तबा हुसैन ने मस्तूरात बनी असद की तरफ निगाह की और रोकर फरमाते हैं बनी असद की औरतों, अरब औरतों से जंग नहीं करते, मर्द तुम्हारे डर जाए, तुम आना, हमें दफना देना, तुम्हारी जन्नत का जामिन हो। ये जुमला मेरा है, मक्तल में यही लिखा हुआ है। मौला कहना चाहते थे अरब वाले औरतों से नहीं लड़ते, ये मुकद्दर मेरी बहन इन सालों से इंतकाम लेने वाले बनाते। मेरे मौला आखिरी जुमला कहने हदिया करने लगा हूँ और उसी के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आखिर में मौला फरमाते जब हम शहीद हो जाएं हमारी जियारत करने के लिए मेरे मुझे शायद ये जिम्मे में शर्त हो। मौला ने फरमाया बनी असद के लोगों मेरा जो भी जाहिर आए ना उसका एहतराम है। और उसको यहाँ लिखा है इसी वजह से 3 दिन तक हर जाहिर हुसैन का मेहमान और वो जमीन मिल्कियत है हुसैन की। इन अलादारों के लिए मुबाह मेरे मजलिस तमाम हो गई। मैं कहना ये चाहता हूँ ओ वारिस हुसैन मौला, ओ वारिस करबला इमाम ज़मा, ओ मौला आपका ज़ुहूर हो, आपके साथ मिलकर करबला वाले कातलू से पूछे